When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Hi everybody, a very warm good afternoon. Thank you so much for joining us. We were scheduled to start at 3 p.m. But since by some error the broadcast has already started, so we said we'll just say hi to everybody and namaste, namaskar, welcome, good afternoon. हम 3 o'clock शुरू करेंगे, अभी है 5 minutes. तो आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए, अपने पिलोज वगैरह ले आइए. आई एम होपिंग कि आपने खाना वगैरह खा लिया है एंड हम बहुत ही जल्द शुरू करेंगे विद आवर सेशन फॉर टुडे. एक जस्ट क्रॉस चेक मैं करना चाहूंगी सबके साथ. अगर आप ये वीडियो ऑडियो वगैरह सब सुन सकते हैं तो एज अटेंडीज आप क्वेश्चन बॉक्स जो है ना वहां पर आप प्लीज एक मैसेज डाल दीजिए that everything is working technically fine. So then we will be all ready to go because by some reason since the broadcast has started early, मुझे कोई technical issues नहीं चाहिए during the session. So आप एक please question box में just put a yes we can hear everything. We will just verify that also. Thank you. Great. Thank you so much, Vimi. That was very helpful. To let us know that everything is working fine. Okay. First of all, good afternoon, everyone, and I welcome Dr. Shraddha Verma and Ms. Sonali Shivlani for taking our time and giving such beneficial information in this webinar, and for all the expecting mothers. And also, I welcome all the expecting mothers on behalf of Cord Life and Vijaya Maternity and Test Tube Baby Center. So, in this special webinar, it is for all you expecting mothers, where Dr. Shraddha Verma will be sharing what all precautions and what you should do for your healthy pregnancy and how to prepare for your labor. And Ms. Sonali Shivlani will be giving you tips on what diet and exercises you have to follow. So, first of all, I congratulate everyone on your pregnancy. It's a big step. And it's a big happiness and a responsibility for your baby's future and your family. So one such responsibility, I will just take 5 minutes to tell you about stem cell preservation, because one such responsibility in today's time is stem cell banking. So I'm from Cord Life. It's a Singapore-based company, and we are into stem cell preservation through umbilical cord. आजकल ज्यादातर लोग स्टेम सेल बैंकिंग करवा रहे हैं. उसका पर्पस यही है कि स्टेम सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेम सेल्स आर द मास्टर सेल्स ऑफ आवर बॉडी. सो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना इज लाइक लाइफ सेविंग सेल्स. हम लोग सिक्योर कर रहे हैं आपके बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो कि आगे जाके काम आएंगे आपके मतलब बेबी और उसके इमीडिएट फैमिली के किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए. सो आज की डेट में अप टू 80+ डिजीजेज हैं जिनका ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेम सेल से पॉसिबल है. Diseases related to blood, organ and skin. Why I'm saying that diseases are related to blood, organ and skin? All three, because we are the only company preserving 3 type of stem cells. So we are not only preserving cord blood, we are also preserving cord tissue. So both cord blood and cord tissue is preserved, and they are later on processed with our technology, which is AXP2. So it is automated technology, and the latest automated technology which is Cord Life is using. And for cord tissue, we are using Cell Optima to harvest stem cells. So Cell Optima is also patented technology of Cord Life.
So we are preserving three type of stem cells. One is hematopoietic stem cells, second is mesenchymal, and third is epithelial stem cells. So all three stem cells, they are responsible because stem cells are the cells, they are the master cells, as I said. So they are responsible to develop your body and to repair the damaged cells. So that's why stem cells को आजकल सिक्योर करना आजकल इम्पोर्टेंट हो गया है, ज्यादातर पेरेंट्स करवा रहे हैं. So I would just request every one of you to go for it, to take a presentation on stem cell बता रही हूँ और एक ब्रीफ बता रही हूँ. So we give you a presentation on stem cell banking. पूरा further details हम लोग आपको provide करते हैं, like what how we are giving you services as a company, how we are as a company, what is Quad Life and what services and what are the plans and packages, everything will cover. So we just need 20 to 30 minutes of your time whenever it is suitable for you all. So जब भी आपके पास time होगा, I will just contact you, and if you have time, so please tell us that you are available for the presentation. You can either call us at your home, so we will come and give you the presentation physically, or either you can take it on Google Meet or Zoom, whichever is possible to you. So thank you so much for listening about stem cell banking. Now I would just ask Dr. Shraddha Verma to please enlighten every one of you to tell about pregnancy and what precautions and every tips they have to take for your easy delivery and how to prepare for your labor. So ma'am, please. Ma'am, would you like to share some slides? No, I'll be just sharing my own experience like that. Then great. Go ahead. Thank you, ma'am. Okay. So I'll first welcome all the pregnant ladies and congratulate all of them for the happiest journey of your life. And actually, I'll be speaking mainly on your most commonly or frequently asked question के answers मैं आज आपको देना चाहूंगी. And I think the preferred language will be Hindi so that everybody will be comfortable, right? ठीक है. So generally हमने देखा है कि whenever the pregnancy is detected nowadays patients are coming. जैसे पहले होता था कि pregnancy में third fourth month के बाद हमारे पास registrations आते थे. But nowadays people are coming at early so that कोई भी problem हो या कोई भी pathology हो वो early detection possible होता है. यहाँ पर दो तीन चीजें जो पेशेंट्स के एंड पे हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है वो ये है कि as soon as pregnancy is detected, patients want to know now how to eat, what to eat, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कितना सीढ़ियां कितनी चढ़नी है, घर में कितना चलना है. These are the questions generally patients को होते हैं. So the simple answer या simple message कह लीजिए ये है कि pregnancy is a physiological condition. और physiology का मतलब होता है जिस तरह आपकी नाक आप सांस लेने के लिए बनी है, आपकी आंखें देखने के लिए बनी है, वैसी आपकी फीमेल बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए बनी. और रिप्रोडक्शन के लिए अगर आपको नॉर्मली कंसीव हो गया है, there is no problem, so your routine life should not be hampered. आपको इस तरह कैलकुलेट करके नहीं जीना है. Just be simple, इसको सिंपल रखिए. नॉर्मल रूटीन खाना जो आपके घर में बन रहा है, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज जो आप करते आ रहे हो, यू डोंट नीड टू चेंज देम अनलेस एंड अनटिल अगर कोई इंडिकेशन होता है, मेडिकल इंडिकेशन, या आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं करनी है या पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, देन ओनली यू शुड कंसिडर ऑल दिस थिंग्स. सेकेंडली, जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स हमसे बात करते हैं वो ये होता है कि मैडम हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं कि नहीं. So unless and until pregnancy में कोई indication हो कि you should not travel, you are having bleeding problems और placenta low lying या placenta previa होता है, unless until these conditions are there, आप आराम से traveling कर सकते हो with all due safety. Then third होता है कि क्या हम excessive diet में generally patients want to ask for नारियल पानी, patient wants to ask for dry fruits. Then they want to ask for other seasonal fruits. ये general questions होते हैं. So my message will be कि आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, no issue. These are good healthy food items. लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमने बस अब प्रेगनेंसी आ गई, हमने एक नारियल पानी भैया की ड्यूटी लगा दी, वो डेली हमारे घर आ रहा है और हमें नारियल पानी. It should not be like that. हम जितना frequently रूटीन लाइफ में लेते हैं, जैसे वीक में 1 या 2 बार you can take.
Dry fruits, yes, it has to be calculative. Walnut and badam, अखरोट, ये सब चीजें होती है अच्छी, definitely they are good for your pregnancy. But if you are already overweight, अगर आपने conceive already higher weight पे किया है, then you need to be cautious because हमें weight gain in pregnancy पे भी बहुत ध्यान देना है. Actually, मैडम अभी नेक्स्ट टॉक में ये सब शेयर करेंगी आपसे, बट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं कहना चाहूंगी कि हम जो भी एक्स्ट्रा डाइट प्रेगनेंसी में शामिल कर रहे हैं, हमारा पूरा जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि टुवर्ड्स व्हाट वी आर हेडिंग. अगर हमने एक्सेसिव वेट पे कंसीव किया है तो यस वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट अवर एक्स्ट्रा कैलोरीज, और अगर हम नॉर्मल वेट गेन पे कंसीव कर रहे हैं तो यस यू कैन हैव दोस लग्जरीज. देन नेक्स्ट इज यस रेगुलर चेकअप्स, टाइम टू टाइम जो आपके डॉक्टर आपको सजेशंस देते हैं. Then regular blood tests, sonographies, and the advice of your doctor. I think that's enough to prepare yourself for pregnancy. Keep your, you can say, temperament normal. To have a normal pregnancy. Normal pregnancy का मतलब होता है uneventful all the 3 trimester. No complication, nothing else. And lastly, मैं कहना चाहूंगी कि what is the labor preparation? Labor preparation में हमारा mental preparation होना चाहिए. If we want to deliver normally, then हमारा preparation for pain is very much important. Nowadays, what we are seeing कि everybody is asking after 7-8 months, ma'am, whether I will deliver normal or not. Actually, मतलब अगर मैं honestly बताऊँ तो no doctor can guarantee a normal delivery beforehand. Yes, if there is no risk factor, there is no complication of your pregnancy, you're not having any medical disease or medical problem in your pregnancy, there are high chance that you will deliver normal. But if you are prepared mentally, अगर आपकी डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है, आपको पेन्स शुरू होते हैं, then be prepared for pains. Most of the times what we see in our practice is after you can say like आपके कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एक्टिव फेज ऑफ लेबर जैसे ही शुरू होता है, मतलब एक्चुअल दर्द आना जैसे ही शुरू होता है, देन पेशेंट्स रियलाइज कि अरे बाप रे ये तो ऐसा होता है, हमने तो सोचा था थोड़ा बहुत दर्द आएगा, फिल्मों में जैसे 1-2 चीखें आती है और बच्चा बाहर आ जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेबर इज अ लॉन्गर प्रोसेस. फर्स्ट डिलीवरी में एटलीस्ट हमें 8 से 12 घंटे का समय लग सकता है. इंटेंसिटी ऑफ पेन वेरी कर सकती है, सब हर इंसान का पेन थ्रेशोल्ड भी अलग होता है, इसीलिए हमें अपनी मेंटल प्रिपरेशन रखनी है कि यस, नॉर्मल डिलीवरी इज अ प्रोसेस वेयर वी विल हैव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वी विल हैव पेन एंड वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ. एंड समटाइम्स यस ओके एग्री, आप नहीं पेन बियर कर सकते, आपका पर्सनालिटी ऐसा है कि यू डोंट वांट पेन, इट्स फाइन. आप ये चीज पहले से एक्सप्रेस करो अपने डॉक्टर को, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेनलेस वजाइनल डिलीवरी ऑल्सो. But you have to tell your doctor beforehand so that आपके लिए सारी preparation hospital environment में painless labor के लिए की जाए. Because when the active phase of labor is set and then you ask for all these facilities, there might be delay in providing all these facilities. And by that time, that painful experience you go through is like, I can say कि it's a bad experience then for you. So preparation of labor is नॉट जस्ट कि मैंने बैग पैक कर लिया, मैंने फर्स्ट क्राइस से बच्चे के लिए कपड़े ऑर्डर कर दिए, मैंने घर में पूरी जो भी हमारे रिचुअल्स है उसकी अरेंजमेंट कर दी. दैट इज नॉट फॉर यू, दैट इज फॉर फैमिली मेंबर्स. फॉर यू इट्स अ मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन फॉर योर बेबी. ओके, सो आई थिंक माय इंट्रोडक्टरी पार्ट इज इनफ and I'll hand over the session to Madam Sonali for the further counseling. Thank you so much, ma'am. That was very, very interesting. मतलब I'm sure कि mothers को बहुत कुछ जानने के लिए मिल गया. And एक वो जो भ्रम होता है ना, मिथ होता है लेबर और डिलीवरी के बारे में, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मदर्स को थोड़ा सा डर भी होता है. आई रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो खुशी के साथ साथ उस होम प्रेगनेंसी टेस्ट को देखकर डर भी आ गया था कि अब तो लेबर की तैयारी करनी पड़ेगी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. ये काफी कॉमन है, काफी नॉर्मल है. आई थिंक ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने ये कभी महसूस नहीं किया है, हमारे लिए ये अनजान बात है और हमने सिर्फ कहानियां सुनी है या फिल्में देखी है या
टीवी शोज देखे हैं। और फिल्मों की बात से, यहाँ तो हमारे मूवीज और फिल्मों में दिखाया जाता है कि लेबर इज लाइक वेरी कॉमेडी, उसमें बहुत हंसी मजाक उड़ा देते हैं। यहाँ तो इतना सीरियस और टेंस बना देते हैं कि लाइफ और डेथ सिचुएशन हो रही है, अब माँ बचेगा या बच्चा। तो इसीलिए हमारे अंदर ये डर बहुत मतलब कूट कूट के भरा जाता है। बट एक्चुअली लेबर इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, इज फिजियोलॉजिकल। मैं अपने जो मदर्स मेरे क्लासेस में आती है, मैं उनको सीधी सी बात बताती हूँ कि आधी दुनिया बच्चे पैदा कर रही है और आधी दुनिया तो औरतें हैं, राइट? सो इतना क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और यही मेथड सारे मैमल्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय, कुत्ते, बिल्लियां वगैरह। मैं अपने आप को, हमको कुत्ते बिल्लियों से नहीं कंपेयर कर रही हूँ, बट लेकिन उनके पास कहाँ अस्पताल है, कहाँ इतना पैम्परिंग, बट लेकिन उनके भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इतना मत करिए, बी नॉर्मल, बी हैप्पी। आई थिंक यहाँ से बात शुरू होती है। जितना हम अपने आप को नॉर्मल समझेंगे, चीजें नॉर्मल होगी। एक और बिट ऑफ एडवाइस थी मैम, आई एम श्योर आप भी अपने पेशेंट्स को बोलती होंगी। मैं भी अपने डॉक्टर से जब मिलती थी इनिशियल डेज में बहुत क्वेश्चंस पूछती थी, बहुत सारे, मैं ऐसे कैसे करूं, वो कैसे करूं। एक दिन मेरी डॉक्टर ने मुझे खुल के ये बोल दिया कि सोनाली, तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो, तो प्लीज प्लीज नॉर्मल हो एंड जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय दिस फेज। बस वो सुनने के बाद actually we every patient this is tips of pregnancy and the first line in Hindi is pregnancy एक सामान्य स्थिति है, ये कोई बीमारी नहीं है। There you go. तो for every patient we get मुझे तो डांटा गया क्योंकि मतलब मैंने भी बहुत ऐसे अटपटे से सवाल पूछे होंगे, आई एम श्योर, बट लेकिन मुझे डांट पड़ी थी। एंड देन उसके बाद बस एक एक रिलैक्स हो गया दिमाग दिल में कि ठीक है, चलो मैं नॉर्मल हूँ, सबका ऐसा होता है। तो चलिए आज थोड़ी हम खाने पीने, एक्सरसाइज वगैरह के बारे में बातें करते हैं। एंड ये आप अपने नॉर्मल लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेस हुए बगैर। हम जनरली क्या, हम किताबों में पढ़ लेते हैं कि रोज हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, तो हम रोज पालक ढूंढ रहे हैं या रोज कोई और ऐसी सब्जी ढूंढ रहे हैं, या रोज हमें विटामिन सी लेना चाहिए तो हम रोज संतरे ढूंढ रहे हैं। फिर संतरों का सीजन नहीं होता है तो हम टेंशन ले लेते हैं। तो खाने को हम नॉर्मल कैसे कर सकते हैं? हमारे इंडियन डाइट में तो एक्चुअली इतने इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम आज इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। ये सेशन आपका रिकॉर्ड हो रहा है तो इसीलिए आप लोग बोल नहीं सकते। आपके जो भी सवाल है, क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए। मैम यहीं पर है, हमारे साथ जुड़ी हुई है फॉर विद ऑल हर टाइम एंड लव एंड एफर्ट। तो सेशन के एंड होने से पहले हम आपके ये सारे क्वेश्चंस जरूर आंसर करेंगे, राइट? तो अब हम इस टॉपिक से शुरू हो जाते हैं ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज। ये दो मेन आइटम्स हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आज हम बात करते हैं न्यूट्रिशन फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। जैसे कि आपको अंबिका ने भी इंट्रोडक्शन दिया, ये सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाया कॉड लाइफ ने। कॉड लाइफ के बारे में तो अंबिका ने बहुत सारी चीजें बता दी आपको ऑलरेडी। एक चीज मैं जनरली ऐड करती हूँ यहाँ पर, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था पिछले साल, हम सब मार्च के कुछ मिड मार्च से लॉकडाउन पे चले गए थे, तो हमारे सारे क्लासेस वगैरह बंद हो गए, हमारे फिजिकल सेशंस बंद हो गए, जितने भी बुक किए थे सब कैंसिल कर दिए। बट अप्रैल हुआ नहीं कि कॉड लाइफ एज अ कंपनी टुक द इनिशिएटिव एंड इमीडिएटली मूव्ड इनटू द वेबिनार्स एंड इट वाज रियली हेल्पफुल बिकॉज इसके द्वारा हम आपसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो वो एक कमी हो गई थी कि हम ये सेशंस नहीं कर पा रहे, हम इंफॉर्मेशन नहीं स्प्रेड कर पा रहे, वो हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इट इज अ थैंक यू टू अ कंपनी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड हेल्पिंग ऑल ऑफ अस कनेक्ट विद ईच अदर। डॉक्टर श्रद्धा को भी एक बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से फॉर हैविंग मी हियर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। सो थैंक यू मैम, और आपके पेशेंट से बात करने का आपने मुझे मौका दिया। मेरे बारे में मैं वेरी क्विकली, मैं प्रेगनेंसी कंसल्टेंट हूँ, 17 साल हो गए, 17 इयर्स से ये काम कर रही हूँ। और सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन आपको अपना ये दे देती हूँ, आई एम ऑल्सो अ मदर। मेरी प्रेगनेंसी की कुछ कहानियां तो आपने सुनी है, लेकिन जो कहानी सुनाई थी वो 20 साल पुरानी कहानी है
क्योंकि मेरा बेटा 20 साल का हो गया है और मेरी लड़की बेटी है वो 18 साल की है। तो ये बड़ी ओल्ड स्टोरी है, बट फिर भी प्रेगनेंसी और डिलीवरी एक ऐसी एक मदरहुड जो जो फीलिंग होती है ना, वो एक औरत, एक वुमन कभी भी अपने लाइफ में भूल नहीं सकती। अब जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने के बहुत फायदे होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस एंड ये सब तो है ही, बट लेकिन इससे ना तो बेबी को बट मदर को और पूरे फैमिली को भी फायदा हो जाता है। बेबी और मदर को किस तरह से फायदा होता है, जब भी हम बात करते हैं मदर से कि आपको क्यों खाना चाहिए अच्छा प्रेगनेंसी के दौरान, हम सब हाइपर अलर्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर यही मन में होता है कि हम अपने बेबी के लिए खा रहे हैं, राइट। बट लेकिन हम बेबी के लिए क्यों खा रहे हैं? पहली बात, बेबी की जो डेवलपमेंट है वो आपके अंदर हो रही है। जहां तक फिजिकल डेवलपमेंट है, जब बेबी की कंसेप्शन होती है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन बेबी इतना छोटा सा होता है, एक टाइनी डॉट जो बैली दिखाई भी नहीं देता, इसको हम एक सिंगल सेल बोलते हैं। और वो इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है कि डिलीवरी के टाइम पे ये बेबी हो जाता है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब ये जो इतने सारे सेल्स हैं, ये सारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो आपके अंदर हो रही है। मेरा सिंपल लॉजिक है, अगर कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन हमने सही डाला है तो फिर वो जो बिल्डिंग है उसमें कोई आंच नहीं आएगी। अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाता है या साइक्लोन आ जाता है तो उसको कुछ नहीं होगा, उसकी नींव मजबूत है। तो उसी तरह आपको अपने बच्चे की नींव मजबूत बनानी है ताकि आपके बेबी का फिजिकल डेवलपमेंट सही हो जाए। कोई भी मदर ये चाहेगी, और मैं भी एक मदर हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ, और मैं हमेशा खुश होती हूँ जब मेरा बच्चा A+ वाला रिपोर्ट कार्ड घर लेके आता था या उनको अपने प्रेफर्ड कॉलेज में अभी एडमिशन मिल जाती है, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो दिमाग की क्षमता है, वो भी आपके गर्भ के अंदर और उसके बाद पहले 3 सालों में बहुत रैपिड होती है। तो इसीलिए आपका जो खान पान है उससे इस पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। एक और चीज होती है बच्चे के लिए, वो होता है उसका वजन। आप कभी भी अपनी मम्मी या सास के साथ किसी भी महिला से डिलीवरी के टाइम पे अगर मिलने गए होंगे तो वो आपकी मम्मी या आपकी सास 3 सवाल पूछती है जनरली। पहला सवाल ये होता है ऑनेस्टली कि लड़का है या लड़की। दूसरा सवाल हमेशा यही होगा नॉर्मल डिलीवरी की सिजेरियन। और तीसरा सवाल उनका ये होता है कि बच्चे का वजन कितने किलो का या कितने पाउंड का, मतलब तो पुराने जमाने में पाउंड भी बोल देते थे, तो कितने किलो का बच्चा है। ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि बच्चे का जो वजन है उससे उनके दिमाग में बच्चे की जो सेहत है, हेल्थ है, वो पता लगती है। जितना बड़ा बच्चा उतना ज्यादा सेहतमंद। पर एक्चुअली ये सही नहीं है। बच्चे का वजन हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स में 2.5 to 3.5 किलोस के बीच में होना चाहिए। अगर कम है तो बच्चा कमजोर है, उसको डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो शायद सहन न कर पाए। और दूसरी बात, उसको बाहर निकलने में भी तकलीफ हो सकती है। और प्लस डिलीवरी के बाद उसको जो अर्ली चाइल्डहुड इश्यूज हैं वो ज्यादा होने के चांसेस हैं। अगर बच्चा ज्यादा बड़ा है, अगर 3.5 किलो से ऊपर हो जाता है तो भी उसको बाहर आने में तकलीफ होगी। आपका जो वजाइना है वो तो बड़ा होना नहीं है इतना, तो उसको उधर भी तकलीफ हो सकती है। और ओबेसिटी हम सब नहीं चाहते, राइट। वी ऑल वांट टू लुक स्लिम एंड ट्रिम, एंड आजकल जमाना तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चे का वजन ओवरवेट भी ना हो। अगर हम मदर की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं तो नीचे फर्स्ट लास्ट पॉइंट से पहले शुरू करूंगी, ऑप्टिमम वेट गेन। क्योंकि अगर वजन सही बढ़ेगा प्रेगनेंसी के हिसाब से, जैसे बच्चे का वजन है, यूट्रस का वजन है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ब्लड वॉल्यूम्स है, ये सारी चीजों पे अगर वजन जा रहा है तो ये वजन बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो डिलीवरी के बाद जो नॉर्मल पीरियड है अराउंड 6 मंथ्स में आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पर आ सकते हो। लेकिन अगर अपने बहुत ज्यादा वजन गेन कर लिया तो फिर उसको लूज करने में आपको ज्यादा दिक्कत होगी। अब जब वजन सही रहेगा तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो सही बैठेंगे। अगर हार्मोन्स सही रहे तो जो आपकी प्रेगनेंसी है वो एकदम हेल्दी रहेगी,
आपकी जो डिलीवरी है वो समय पर होगी, मतलब हम बोलते हैं फुल टर्म डिलीवरी 37 वीक्स खत्म करके ही होनी चाहिए, उससे जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो अगर समय पे डिलीवरी होगी तो जो आपका बर्थ एक्सपीरियंस है, जो लेबर और डिलीवरी एक्सपीरियंस है ऑल्सो ऑफ अ हेल्दी मदर विल बी पॉजिटिव। जो डर है कि माय गॉड क्या होगा लेबर में, ये भी आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो सकता है। अब मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि ये खाओ और आपको लिवर पेज दे होंगे, ऐसे बहुत सारे नुस्खे आपको सुनने मिलेंगे कि 9th मंथ में मुझे घी खाना चाहिए, या मुझे छुआरे खाने चाहिए, या मुझे कैस्टर ऑयल पी लेना चाहिए। ये बहुत नुस्खे मिलेंगे, ऐसे कोई भी नुस्खे पर विश्वास ना करें, क्योंकि इससे खाली अननेसेसरी आपको तकलीफ हो सकती है और वो हम नहीं चाहते। तो जो डिलीवरी है, अगर आपको इसको सही मायने में अच्छे से करना है तो एक, अपने आप को हेल्दी बनाना है खाने पीने के मामले में। दूसरा, आपके डॉक्टर से परमिशन लेके एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। और तीसरा, अपने अंदर एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनाना है, जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बेटर हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान आपको 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। अभी बोलते हैं ना, अरे तुम प्रेग्नेंट हो, अब तो तुम कुछ भी खा सकती हो, तो तुमको डबल खाना चाहिए। अब एक आइसक्रीम खा रहे हो, दूसरी भी लाकर दे देंगे, एक रसमलाई खा रहे हो तो दूसरी भी डाल देंगे, नहीं, क्योंकि जो दूसरा जिसके लिए आप खा रहे हो वो तो इतना छोटा सा है, राइट? मैंने अभी तो आपको बताया कि इतना छोटा सा होता है, तो आप उसके लिए डबल कैसे खा सकते हो? बर्थ के टाइम पर भी बच्चा सिर्फ 3.5 किलो का होता है ज्यादा से ज्यादा, और आप तो समझो 60 किलोस के हो, तो आप किसी 60 किलोस के बच्चे को नहीं जन रहे हो, आप एक 3.5 किलो के बच्चे को जन रहे हो। तो आपको इसीलिए सिर्फ 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने हैं। ये 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज का क्या मतलब होता है? सिंपल भाषा में समझा देती हूँ आपको। 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही, ये कुल मिला के आपके 300 कैलोरीज होते हैं। ये आपको पूरे दिन में एक्स्ट्रा खाने हैं। थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, जैसे अगर आप नॉर्मली सब्जी लेते हो तो साथ में थोड़ा सैलेड भी ले लीजिए। अगर आप नॉर्मली दही बनाते हो तो उसमें वेजिटेबल्स डाल के वेजिटेबल रायता बना दीजिए। तो अपने कैलोरीज आप इस तरह से थोड़े बहुत इंक्रीज कर सकते हो। अब सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है खाने का। जनरली लोगों को पता होता है कि हेल्दी क्या है और हेल्दी क्या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सलाद हेल्दी है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल बेशक। या मैं आपसे पूछूं क्या बादाम और अखरोट हेल्दी होते हैं, आप कहोगे यस। और अगर मैं पूछूं कि चॉकलेट केक या जो रास्ते में पानी पूरी मिल रही है वो, तो आप कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं। जाहिर बात है, आप जानते हो क्या हेल्दी है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप बैलेंस्ड मील्स नहीं खाते हो। एंड ये बहुत जरूरी है कि आपको बैलेंस्ड डाइट लेना है। बैलेंस्ड डाइट ये तो फूड पिरामिड है, अंग्रेजी स्टाइल है, इंडियन स्टाइल में समझा देती हूँ। जब भी आप अपने मेन मील्स खाने के लिए बैठो, मेन मील्स क्या होते हैं? आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये 3 मील्स जब आप खाने बैठो तो अपने आगे आप अपना हाथ इस तरह रख दीजिए, राइट? ये हो गई आपकी 5 उंगलियां। क्या आपके खाने में 5 अन्य पदार्थ है? अगर हाँ, तो ज्यादातर आपकी मील हो गई बैलेंस्ड। अगर आपके खाने में ये 5 पदार्थ नहीं है तो आपकी मील बैलेंस्ड नहीं है। तो अब ये 5 पदार्थ क्या हैं, इनको आपकी भाषा में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो हो गई मेरी भाषा। अब आपकी भाषा में ये है रोटी, चावल, बाखड़ी, या अगर आप उपमा, पोहा, इडली, डोसा, ये सारी चीजें आप खाते हो, जो भी ग्रेन का आइटम है, इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? अब आपको ये दिन में कम से कम 6 लेने हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह के टाइम पे एक कटोरी इस तरह से सूजी का उपमा ले लिया, और दोपहर को आपने 2 रोटियां ले ली, रात को आपने 2 रोटियां ले ली, और शाम के टाइम पे आपने एक रोटी में ऐसे सब्जियां वगैरह डाल के रोल रैप बना के खा लिया। तो इस तरह से आपके 6 सर्विंग्स दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ये बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी डाइट कर चुके हैं नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में, वजन कम करने के लिए हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं।
अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं वो प्रेगनेंसी में हमको डाइट नहीं करनी, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हमको डाइट नहीं करनी, हमको इंश्योर करना है कि हम सही से अपने कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम दिन में 6 जरूर कंज्यूम करें। गलत कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे बिस्किट्स, या अगर हम कुछ तली हुई चीजें खा लेते हैं तो इनको हमको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें आपके पास अननेसेसरी नॉन न्यूट्रिटिव अनहेल्दी कैलोरीज आ जाती हैं और फिर जो हेल्दी कैलोरीज है उनके लिए जगह नहीं बचती। अब आते हैं फल और सब्जियों पे। तो ये आपका हो गया दूसरा पदार्थ, 5 उंगलियों के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो हम फल और सब्जियों पे आते हैं। अब फल और सब्जियों को चुनने का एक बहुत ही आसान तरीका है। फल और सब्जी अगर आप देखोगे तो अलग अलग रंगों के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान को भी पता करना है कि भैया इसमें कौन सा न्यूट्रिशन है। आपको कोई डाइट बुक की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि मुझे कितना विटामिन ए, कितना विटामिन सी, कितना आयरन, कितना कैल्शियम, मुझे क्या चाहिए। आप सिर्फ रंग देखिए, राइट। जितने आप अलग अलग रंग खा सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा, राइट। और दूसरी बात फल और सब्जियों की ध्यान रखनी है कि आपको इनको सीजनल खाना है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आम का सीजन चल रहा है तो आप आम बेशक खा सकते हो, लेकिन अब फिलहाल स्ट्रॉबेरीज का सीजन नहीं है तो स्ट्रॉबेरीज मत खाइए, क्योंकि ये हो जाती है आर्टिफिशियल। इनको ग्रोथ वगैरह में भी आर्टिफिशियल हार्मोन्स यूज किए हो सकते हैं। अब इनको हम जब सर्विंग्स बोलते हैं तो कम से कम 2 फल और 3 सब्जियां आपको दिन में लेनी चाहिए, लेकिन कितनी लेनी है? एक सर्विंग को हम कम से कम 100 ग्राम 100 ग्राम्स मानते हैं जो आपको इन अ डे कंज्यूम करने हैं, टोटल 500 ग्राम्स, राइट। इससे आपके विटामिन और मिनरल्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और आपने अलग अलग रंग लिए हैं तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि किसमें क्या है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स को हम सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स बताते हैं, जो जिससे बच्चा स्टार्ट से लेके फिनिश तक जो ग्रोथ होती है, चाहे उसकी फिजिकल ग्रोथ हो चाहे उसकी मेंटल ग्रोथ हो, ये प्रोटीन्स की वजह से होती है, राइट। अब इसमें आपको कम से कम 75 ग्राम्स चाहिए दिन में। अब तोला मत लेके बैठ जाइएगा कि कितने ग्राम्स हो गए मेरे प्रोटीन के। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मेरी रेकमेंडेशन ये है कि जब भी आप खाना खाते हो, चाहे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, लंच ले रहे हो, डिनर ले रहे हो, आपको प्रोटीन की कोई ना कोई आइटम जरूर खानी चाहिए। और बीच में जब आप दूसरे स्नैक्स लेते हो उस टाइम पर भी आपको प्रोटीन की कोई ना कोई आइटम को खाना चाहिए। ये आपके लिए जरूरी है। अब ये आप कैसे करोगे? जब अब हमने डिसाइड किया, राइट, कि हम ब्रेकफास्ट के टाइम पर उपमा ले रहे हैं, रवा का सूजी का उपमा बना रहे हैं, तो उसके साथ आप में भी 1 कटोरी दही ले लो या 1 गिलास दूध पी लो। अगर आप दोपहर में सब्जी रोटी ले रहे हो तो सिर्फ सब्जी रोटी नहीं, दाल या राजमा या चना या वटाना या ऐसी कोई चीज ले लो। रात में भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप मीट वगैरह खाते हो तो चिकन, फिश वगैरह आप ले सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में आप एग्स ले सकते हैं। दोपहर के मतलब जो मिड मॉर्निंग है आप उधर नट्स खा लीजिए, शाम के टाइम पे स्प्राउट्स खा लीजिए। तो ये इस तरह से जब भी आप कुछ खाते हैं, आप अगर प्रोटीन की कोई ना कोई चीज खाएंगे तो आपका जो पूरा दिन का खाना है वो एकदम सही से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। ये आपकी हो गई चौथी उंगली, राइट। अब कैल्शियम बच्चे की हड्डियां बनाती है, दांत बनाता है, ये तो हम श्योर आपको पता है। इसके अलावा बच्चे का मसल और नर्वस सिस्टम, खास करके हार्ट मसल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर ने तो कैल्शियम की गोली दी है, क्या वो काफी नहीं है? डॉक्टर के हिसाब से वो बिल्कुल काफी है, लेकिन डॉक्टर का ये अंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि इसके अलावा भी आप कैल्शियम की चीजें घर पर खा रहे हो, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, चीज है, ये सब आपको कंज्यूम करने हैं। अगर आप में से कोई लैक्टोज ना ले सकता है या दूध वगैरह नहीं पसंद आता है तो आपको दूसरी चीजों जैसे प्लांट सोर्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, ब्रोकली, कैबेज या नाचनी, लाल कलर का ग्रेन होता है, ये आप ऐसी चीजें अपने डाइट में जरूर इंक्लूड कर सकते हैं।
फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, ये हो गई आपकी पांचवी उंगली, और ये भी एक उंगली है। मैं मना नहीं करती हूँ कि फैट्स की भी हमको जरूरत होती है बॉडी में, क्योंकि हम जो फैट्स अब्सॉर्ब करने हैं, जो विटामिन हमको अब्सॉर्ब करने हैं, उसके लिए हमको फैट्स की भी जरूरत पड़ती है, पर इतनी नहीं जितनी हमको प्रेगनेंसी में खिलाते हैं। जैसे कि आपको 9th मंथ में दूध में भर भर के घी डाल के खिला देते हैं, या डिलीवरी के बाद बस ताकत आएगी इसलिए भर भर के घी खिला देते हैं। कई फैमिलीज में तो मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी पता नहीं लगती है कि घी बनाना शुरू करते हैं, घर का होममेड घी, और डिलीवरी तक 25 किलो घी तैयार हो जाता है, और वो एक लेडी को खत्म करना है। अब 25 किलो घी खाकर आपका 25 किलो वजन तो जरूर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको इस तीन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, बड़ा सा वर्ड है, लेकिन ये आपको ऑलिव ऑयल या सीड्स, वॉलनट्स, इन सब चीजों में ज्यादा मिलता है। तो आपको ऐसे वाले फैट्स ज्यादा कंज्यूम करने हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स वाले फैट्स हैं, घी वगैरह, कम मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी खाने की चीज को आप तलिए मत। बड़े टेस्टी होते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी अवॉइड करिए, क्योंकि इससे अननेसेसरी कैलोरीज हो जाते हैं और वेट गेन हो जाता है। अब ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं, है तो बड़े सिंपल, बट फिर भी न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे पानी पीना बहुत जरूरी है। मुझे पता है टॉयलेट जाने की बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बार बार टॉयलेट का ख्याल होता है और नहीं जाना है, बोर हो रहे हैं, बट लेकिन फिर भी डाइजेशन के लिए। और आपको तो पता है आपके बेबी जो अंदर रह रहे हैं वो पानी में तो रहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ये कैसे बन रहा है? आपके फ्लूइड इंटेक से। अगर आप हाइड्रेटेड सही रहोगे तो बेबी का अंदर जो वाटर लेवल्स है वो भी सही रहेगा। सो दिन में कम से कम 8 to 10 ग्लासेस, करीबन 2 से 2.5 लीटर पानी, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो। अगर गर्मी का मौसम है, आप एक्टिव हो, आप बाहर ज्यादा जाते हो, तो देन आपको पानी थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। सॉल्ट भी एक न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इसमें सोडियम मिलता है, और सोडियम एक मिनरल है जो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भर भर के सॉल्ट ले लें। जितना हम नॉर्मल खाने में लेते हैं उतना ठीक है, बट एक्स्ट्रा, जैसे कोई भी पैकेज्ड फूड्स, राइट, जैसे आप चिप्स का पैकेट ले आए तो उसमें बहुत सोडियम हो जाता है, बहुत सॉल्ट होता है। कोई भी चीज जिसमें एक्सपायरी डेट होती है ना, जैसे सॉस है, अचार है, मतलब बॉटल्स वगैरह हम ले आते हैं, तो वो हमको अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम घर में भी अचार बनाते हैं तो उसको भी बनाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए नमक और तेल बहुत ज्यादा पड़ता है। तो वो जो मिथ है ना कि प्रेगनेंसी में खट्टी चीजें खाने का मन होता है, इससे थोड़ा सा दूर रहिए, बिकॉज अननेसेसरी चीजें आपको कंज्यूम करनी पड़ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपके सप्लीमेंट्स। अब आप सोचोगे कि इतना सब कुछ खा रहे हैं तो वो गोलियां लेना जरूरी है क्या? इसका आंसर सिंपल है, हाँ, हाँ और हाँ। क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 9 ही महीने है ना, वो एक परफेक्ट बेबी बनाने के लिए। वो परफेक्ट बेबी बनाने के लिए अगर हमारे खाने में, हम तब इंसान है, कभी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसीलिए डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं जो आपको लेने चाहिए। अगर आपको कोई सप्लीमेंट सूट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक है रहने दो, नेक्स्ट विजिट में पूछ लूंगी, वो 1 महीना निकल जाएगा। अब 9 में से 1 महीना निकल गया तो 10% का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? तो वी शुड नॉट डू दैट। इमीडिएटली आपको चेक कर लेना चाहिए डॉक्टर से कि मैं इसके अलावा और कोई ब्रांड ले सकती हूँ क्या, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आपको कोई ना कोई तो जरूर सूट करेगा। ये मेरी तरफ से प्रेगनेंसी सुपर फूड्स की लिस्ट है। पटेटोज के बदले में आप स्वीट पटेटोज ले लीजिए। एग्स आप रेगुलरली ले सकते हो, एग व्हाइट ज्यादा, दिन में 1 एग येलो से ज्यादा नहीं। सो सुपर फूड भी बुलाया है, लेकिन मेनली एग व्हाइट्स की वजह से। जो भी हरी सब्जियां हैं आप उनको ज्यादा मात्रा में लीजिए। पल्सेस जैसे दालें हैं, लेग्यूम्स जैसे छोला राजमा, और मीट अगर आप यूज करते हो तो उसको स्किन के बगैर, मतलब फैट का लेयर जो है वो निकाल करके। बेरीज भी आप कंज्यूम कर सकते हो, फ्रेश मिलते हैं तो डेफिनेटली फ्रेश, नहीं तो पैकेट अगर आप लेते हो तो चेक करके कि उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ना हो, ज्यादा शुगर वगैरह ना हो। होल ग्रेन्स यूज करिए।
मतलब इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस आप ब्राउन राइस लीजिए, मैदा बिल्कुल मत लीजिए, उसके बदले में आप सूजी वगैरह यूज कर लीजिए, तो ये आपके लिए बेटर होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू बेटर होगा। एवोकाडोज अगर आपको मिलते हैं आपके मार्केट में वहां पर, तो आप एवोकाडोज भी जरूर ले सकते हैं। बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ज्यादा मत लें, हाफ एन एवोकाडो एवरी डे और ऑल्टरनेट डे ये काफी है, क्योंकि इसमें फैट्स भी ज्यादा होते हैं। और मंचिंग के लिए, स्नैक्स के लिए ड्राई फ्रूट, नट्स, सीड्स, ये सब भी आपको कंज्यूम करने चाहिए। ये कुछ फूड्स है जो आपको अवॉइड करनी है, छोटी सी लिस्ट है, ज्यादा लंबी नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी में तो बड़ी सी लिस्ट बन जाती है, राइट? बट मेरी लिस्ट छोटी है। रॉ मीट, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता। सॉफ्ट चीजेस, जो फॉरेन चीजेस हैं जैसे ब्लू, ब्री वगैरह, इनको आपको अवॉइड करना। जो रेगुलर चीजेस मार्केट में मिलती है ये आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में भैंस या गाय है तो डायरेक्टली दूध निकाल के मत पीजिए, उसको पैस्चराइज करना जरूरी है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। अंडे भी कच्चे नहीं लेने, और ध्यान रहे कोई कोई डिजर्ट्स में रॉ एग्स पड़ते हैं, तो ऐसे डिजर्ट्स आपको नहीं खाने चाहिए। फिश ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि मर्क्यूरी लेवल्स बढ़ सकते हैं, तो हफ्ते में 2 या 3 दफा। कॉफी, जैसे चाय, कॉफी, एरिएटेड ड्रिंक्स, इनको आप कम मात्रा में, मतलब अवॉइड कर सकते हो तो बेटर, बट लेकिन नहीं तो बिल्कुल एकदम कम। अल्कोहल और कोई और ड्रग्स, इनको तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ये कुछ फूड्स हैं जिनको हम कंट्रोवर्शियल फूड्स बुलाते हैं, जैसे पपाया और पाइनएप्पल। माना जाता है कि इससे शायद आपकी प्रीटर्म कॉन्ट्रैक्शंस या अर्ली डिलीवरी हो सकती है। अब वैसे तो नहीं, अगर आप रॉ पपाया खाते हो या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये चीजें खा लेते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। पर लेकिन अगर मन में शंका है, अगर कहीं कुछ डाउट है, घर पे कोई कुछ बोल रहा है, तो फिर अवॉइड कर लीजिए। डेट्स लोग अवॉइड करते हैं बोल के कि काले हैं, बच्चा काला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। फूड या खाने की कोई भी चीज के रंग से बच्चे के रंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोकोनट वाटर, कोई बोलता है कि अगर आप नारियल पानी लोगे तो आपको एसिडिटी होगी, आपके बच्चे का सर नारियल की तरह बड़ा हो जाएगा, बच्चे के बाल ज्यादा हो जाएंगे। ये सारे मिथ्स हैं। तो आप अपने हिसाब से, मतलब आपको जितना ठीक लगे, दिन में 1 नारियल पानी अगर कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और घी बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि हमको भर भर के घी खाना है, राइट? घी खाने से आपकी डिलीवरी जल्दी नहीं होगी, ये एक मिथ है। अब बात करते हैं और आते हैं आपके एक्सरसाइजेस पे, क्योंकि कोई भी चीज अकेले तो नहीं हो सकती, राइट? तो इन सब चीजों को जो खा पी रहे हो उसको हेल्प करने के लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के तो बहुत बेनिफिट्स हैं। बैक पेन या दूसरे डिस्कम्फर्ट्स जो होते हैं, जैसे एसिडिटी, लेग्स में क्रैम्प्स वगैरह, ये कम हो जाते हैं। आपका जो मूड है, मूड और एनर्जी लेवल्स, ये आपके इंक्रीज हो जाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार एक्सरसाइज करने से थकावट होती है। नॉट रियली। शुरू शुरू में लगेगा आपको कि थकावट हो रही है, बट लेकिन उसके बाद जब आपको आदत पड़ जाएगी, इन 1 वीक 10 डेज, तो एक्सरसाइज से एक्चुअली आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। मेरे क्लास के लोग बोलते हैं कि सोनाली आप रोज क्यों नहीं क्लास लेते हो, एक्सरसाइज करवाओ हमको रोज, हमको नींद बहुत अच्छी आती है जिस दिन आपका क्लास होता है। बट लेकिन अब रोज तो नहीं हो पाता, तो इसीलिए जो हमारे शेड्यूल के हिसाब से हम बोलते हैं कि आप तो दूसरे दिन खुद भी कुछ कर सकते हो घर पे। इससे एक्सेस वेट गेन नहीं होती, वेट कंट्रोल हो जाता है विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट्स। स्टेमिना, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो जाते हैं, लेबर डिलीवरी में हेल्प हो जाती है, और डिलीवरी के बाद बहुत क्विकली रिकवरी हो जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी तो ठीक है, लेबर तो ठीक है, एक्चुअल असल काम तो डिलीवरी के बाद होता है, जब बच्चे को संभालना होता है। मैं तो अपने हस्बैंड को ये बोलती हूँ कि मैंने 2 बच्चे पैदा किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा डबल ड्यूटी है, मेरी तो ट्रिपल ड्यूटी है। 24 आवर्स में मुझे 72 आवर्स का काम करना पड़ता है, क्योंकि अपने 24 तो है ही, प्लस 48 और 2 बच्चों के हिसाब से मुझे टाइम रखना पड़ता है। तो डिलीवरी के बाद आपकी ज्यादा जरूरत है आपको अपने स्ट्रेंथ और स्टैमिना की, तो रिकवरी आपकी सही से हो जाती है। एक्सरसाइज के बारे में बात करने से पहले आपके पोस्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आम मैंने देखा है
कि जो मदर्स कंप्लेन करती है हमें पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत बैक पेन हो रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है। ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, ये पोस्चर की वजह से होता है। अब जब आप ये दो पिक्चर्स देखते हो, जो पहला पिक्चर है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर आप देखोगे तो उस महिला ने बैक सपोर्ट बराबर नहीं लिया, वो बिल्कुल स्लाउच कर रही है, एकदम टेका नहीं लिया उसने सही से, तो इसको बैक पेन होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप जहां पर भी बैठो बैक सपोर्ट पूरा लेके बैठो, मतलब आपकी पूरी बैक को वो प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपको ऐसे लगे कि ये नहीं हो पा रहा है तो आपको एक छोटा पिलो अपने बैक में नीचे, बैक के नीचे जो आपका बैक का स्मॉल पार्ट है वहां पे आपको टक कर देना चाहिए, ताकि आपके बैक को सही से सपोर्ट मिल जाए। सिर्फ बैठने में नहीं, खड़े होने में भी पोस्चर का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो नॉर्मली तो हमारे पास ये छोटा सा कर्वेचर होता है बैक में, और प्लस यहाँ पर जो वेट गेन हो जाती है उससे ये जो कर्व है वो और इंक्रीज हो जाता है। एंड देन आता है ब्रेस्ट, राइट? तो ब्रेस्ट का जो वेट है वो भी इस तरह से आपके बैक को पूरा कर्व रिवर्स दे देता है, तो इसकी वजह से बैक में प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती हैं। तो जब भी आप स्टैंड करते हो आप बिल्कुल इरेक्ट खड़े रहिए, अपने शोल्डर्स को थोड़ा पीछे करके, अपने चेस्ट को थोड़ा स्टिक आउट करके, अजीब ना लगे बट लेकिन इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल कि आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। एक्सरसाइज कोई भी स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से परमिशन लेना ना भूलें, क्योंकि एक्सरसाइज ऑफ कोर्स फिजिकल है, और अगर आपके प्रेगनेंसी में भगवान न करे कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत है, तो इससे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो हर विजिट पे जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी आप टेस्ट या रिपोर्ट निकालते हैं, हमेशा डॉक्टर से ये जरूर पूछ लीजिए कि क्या मैं आज एक्सरसाइज, मतलब ये मंथ मुझे एक्सरसाइज करना अलाउड है या नहीं, राइट? कुछ सिंपल मूवमेंट्स आपको दिखा देती हूँ। ये है नेक रोटेशंस, आप बैठे बैठे मेरे साथ ट्राई कर सकते हो। जो भी आप प्रेगनेंसी के दौरान करो हमेशा स्लोली करना है, कोई जल्दी नहीं है, राइट? ट्रेन छूट जाए नवाबों की लखनऊ में तो छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी में हमारे को कोई हड़बड़ी नहीं है, राइट? हम आराम से एक्सरसाइज करेंगे, ओके? तो स्लोली आप अपने चिन को चेस्ट पे, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर, बैक ऑफ द हेड को बैक, राइट ईयर को राइट शोल्डर और चिन टू चेस्ट। अब इसको हम रिवर्स करेंगे, राइट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। तो ये आप दिन में 8-10 दफा कर सकते हो, इससे आपके हेड को सर्कुलेशन सही हो जाएगा। इससे जो थोड़ा गिडीनेस होता है, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, थोड़ा ब्लैकआउट फीलिंग होती है, हेडेक्स वगैरह होते हैं प्रेगनेंसी में, ये कम हो जाएंगे। यही चीज आप अपने रिस्ट के साथ भी कर सकते हो, ट्राई कर लीजिए। फर्स्ट एक तरफ एंड फिर हम इसको दूसरी तरफ, राइट? ये जो रिस्ट रोटेशंस है, कई बार क्या होता है हम रात को सोते हैं तो ऐसे करके सो जाते हैं तो हमारे यहाँ पे खून जम जाता है, या अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं एक ही पोजीशन में, जैसे अगर आपने सोचा कि आज मैंने गाजर का हलवा बनाना है, तो आपने डिसाइड किया मैं 5 किलो गाजर घस रही हूँ, तो उसी पोजीशन में अगर आप अपने हाथ को रखते हो तो वो यहाँ पर खून जम जाता है। तो इसीलिए आपको रिस्ट रोटेशंस रेगुलरली करना चाहिए। अगर आप वर्किंग लेडी या आप कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं तो वही प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? एक ही पोजीशन में आपका हाथ रहता है। तो रिस्ट रोटेशंस आप दिन में कई बार कर सकते हो, 8-10 काउंट्स दिन में 3-4 बार आप करते रहिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल है। जिस तरह से रिस्ट रोटेशंस किया उसी तरह से पैरों का भी रोटेशंस कर सकते हैं। तो वहीं पर जहां आप बैठे हैं आप पॉइंट करिए और इस तरह से फ्लेक्स, पॉइंट और फ्लेक्स, और फिर फुल एंकल्स को इस तरह से आप रोटेट कर दीजिए एंड फिर रिवर्स, राइट? एक जगह पे अगर आप खड़े रहते हैं, बैठते हैं ज्यादा टाइम, कभी आप गाड़ी में थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं, आजकल तो हम ज्यादा फ्लाइट वगैरह में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बट लेकिन अगर आपको फ्लाइट वगैरह लेनी पड़े तो बहुत ज्यादा समय एक ही जगह पे बैठना होता है, तो इस तरह के एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगे। अगर आप खाना बनाने के लिए भी थोड़ा ज्यादा खड़े हो गए
तो ये एक्सरसाइज जैसे आपका खाना बना के हो जाए, आप बैठ के ये एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए। ये है बटरफ्लाई पोजीशन। आई वुड रेकमेंड कि आप इसको मैट पे करिए। ये एक लेबर एक्सरसाइज है जो आपके पेल्विस को स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। तो आप अपने दोनों पैर इस तरह आगे ले आएंगे और फिर अप और डाउन, अपने नीज को आपको इस तरह से फ्लैप करना है, राइट? तो इससे आपको आपके जो इनर थाइज है स्ट्रेच ज्यादा फील होगा। मैं तो इस एक्सरसाइज को एक्चुअली बोलती हूँ कि दिस इज योर एनी टाइम एक्सरसाइज। मतलब आप अगर फोन पे बातें कर रहे हो या टीवी देख रहे हो तो आपको इस पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। ये है आपका कैट एंड कैमल पोज। बैक एक्सरसाइज बैक पेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगेन इसको प्लीज मैट पे करिए, बेड पे मत करिए, क्योंकि नहीं तो आपकी स्टेबिलिटी सही नहीं रहेगी। तो दोनों आर्म्स पे और नीज पे पहले आप अपने बैक को इस तरह आर्च करेंगे और फिर कैमल की तरह हम्प बनाएंगे। दिन में कम से कम 8, 10, 12 काउंट्स करने से आपके बैक को अच्छा स्ट्रेच मिल जाएगा। ये पेल्विक टिल्ट है, ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल बैक एक्सरसाइज है। बैक पर लेट करके आप अपने बटक्स को इस तरह से रेज करें, होल्ड करें और फिर आप रिटर्न कर लीजिए। ये भी 8, 10, 12 काउंट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। लेग रेजेस को भी मैं एक लेबर एक्सरसाइज बोलती हूँ। मैट पे आप साइड पे लेट जाइए, दोनों लेग्स के लिए करना है तो एक लेग से शुरू करेंगे। साइड पे लेट के आप लेग को फुल 90 डिग्रीज तक खोल दीजिए और फिर क्लोज एंड 90 डिग्रीज एंड क्लोज। तो ये एक्सरसाइज आपके पेल्विस को स्ट्रेच करने में हेल्प करेगी। नॉर्मली मैं मदर्स को रेकमेंड करती हूँ 3 to 4 सेट्स, यानी कि 24 to 32 काउंट्स एक लेग के लिए करना है। पर जब शुरुआत करें तो इतने ज्यादा नहीं, 8 से 10 से शुरू करें और जैसे आपकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना इंक्रीज होती है वैसे ही आप अपने काउंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। स्क्वाट्स बड़ा फेमस है, सब लोग बोलते हैं 9th मंथ लगा नहीं कि झाड़ू कटका करना शुरू करो और बाई को निकाल देंगे, तुम ही करो। ये बहुत ही आम सुनने मिलता है, लेकिन हम 9th मंथ के लिए वेट नहीं करेंगे। जैसे ही डॉक्टर हमको परमिशन देती है हम इस तरह से स्क्वाट्स कर सकते हैं। स्क्वाट्स क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एब्डोमेन में वेट इंक्रीज होने की वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल है। आप कोई ना कोई अच्छा सपोर्ट ले लीजिए, जैसे एक मजबूत कुर्सी, सोफा, दीवार, या आपके हस्बैंड अगर वो वेट करने के लिए तैयार है आप उनके शोल्डर्स को पकड़ के अच्छी सी स्क्वाट कर सकते हैं, राइट? लेकिन पैर बिल्कुल फैला करके हाफ वे, पूरा नीचे अभी नहीं आना है। वो जब आपके बेबी का हेड एंगेज हो जाएगा लास्ट में आप डक वॉक्स भी कर सकते हैं। लेकिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी जैसे ही आपको एक्सरसाइज की परमिशन मिलेगी आपको स्क्वाट्स करने चाहिए। अब डीप ब्रीदिंग एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। जहां पर भी आप बैठे हो एक लंबी सांस ले लीजिए, जैसे आपका बॉडी, आपका पूरा शरीर एक बलून है लोअर एब्डोमेन तक, और फिर एक्सहेल, राइट? फिर इनहेल एंड एक्सहेल। कहीं पर सांस रोकनी नहीं है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, बिल्कुल अपने लोअर एब्डोमेन तक, राइट? एक्सहेल। कम से कम दिन में 30 to 40 आपको डीप ब्रेथ्स करने, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीगल्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आप अपनी प्रेगनेंसी में कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए, बट इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है क्योंकि ये आपकी वेजाइनल एक्सरसाइजेस है। ये वेजाइनल एक्सरसाइजेस आप कहीं पर भी कर सकते हैं, लेट के, बैठ के, खड़े होके, चल के, गाड़ी में, ऑफिस में, टीवी देखते वक्त, फोन पे बात करते वक्त, किसी को पता भी नहीं चलेगा। करनी कैसे है? आपको इमेजिन करना है कि आपको यूरिन पास करना है लेकिन हम आपको जाने नहीं दे रहे। तो आप अपने जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, वेजाइनल मसल्स कैसे टाइट कर लेते हो ताकि आपका यूरिन लीक ना हो जाए। बस यही मसल्स आपको यूज करने हैं, होल्ड और रिलीज, होल्ड और रिलीज। सांस बिल्कुल नॉर्मल, और ध्यान रखिए ये बाथरूम में नहीं करनी, यूरिन होल्ड नहीं करना, इसे इमेजिन करना है, राइट? सो इट्स अ होल्ड एंड रिलीज, होल्ड एंड रिलीज, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक्सरसाइज है आप दिन में 50, 70, 80
बांट के 10-15 के गैप्स पे कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के कई सालों बाद भी ये एक्सरसाइज हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहता है और फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम्स जो होते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के या ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस के, ये सब आपको नहीं होंगे। When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. एंड ये आज का स्पेशल है। ऑल द मदर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हैं, कॉर्ड लाइफ और लाइफ इन परस्यूट्स की तरफ से आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट वाउचर है। लाइफ इन परस्यूट्स एक ऐसा ब्रांड है जो ऑर्गेनिक और नेचुरल वेलनेस एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है फॉर मदर्स एंड बेबीज। तो चाहे मसाज ऑयल हो या बेबी मसाज ऑयल हो या बॉडी वॉश हो, आप ये सारी चीजें अपने लिए और अपने बेबी के लिए थोड़ी सी घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। ये सेशन खत्म होने के अराउंड 48 to 72 आवर्स में कॉर्ड लाइफ की कोई एक टीम मेंबर आपके साथ टच में रहेंगे और आपको ये वाउचर, इस सेशन की रिकॉर्डिंग और एक प्रेजेंटेशन की रिक्वेस्ट के लिए अप्रोच करेंगे। आप ये वाउचर का और इस सेशन की रिकॉर्डिंग का बेनिफिट जरूर उठाएं। ये कुछ बुक्स हैं जो मेरी तरफ से अवेलेबल है मार्केट में, एंड आप इनको प्रोक्योर कर सकते हैं ऑन Amazon। अब वी आर रेडी फॉर योर क्वेश्चंस। मैम इज आल्सो अवेलेबल, डॉक्टर श्रद्धा मैम। मैंने अपने पर्सनल कोऑर्डिनेट्स स्क्रीन पे डाल दिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आप प्लीज मेरे साथ इन सोशल मीडिया चैनल्स पे जुड़ जाइए। मेरे बारे में या मेरे प्रोग्राम्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट एड्रेस भी मैंने दे दिया है, और इसके अलावा कॉर्ड लाइफ के सारे नंबर्स भी हैं इस स्क्रीन पर। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अपने वाउचर और इस सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए। तो आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टोल फ्री नंबर या SMS, जो आपको पसंद हो, या एक्चुअली तो सभी लिख लीजिए, राइट? सो वी विल ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस and I hope there are lots of questions. So ma'am, are we ready? So मैं question read करती हूँ मैम, आप आंसर कर दीजिए। मैम अपना ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए। Yes, thank you. So the first question is, what should we do in case of body pain and weakness? During pregnancy. During pregnancy. For body pain and weakness, you can take intermittent rest. Like if your routine activity, your household chores or office work, whatever you are doing, you need to take intermittent rest. Like 2 to 3 hours work, then 1 hour rest. You can lie down. You can just take a short nap. And another thing, you can consult your doctor that it is not related to any other thing. Some infection. Sometimes the infection is asymptomatic, other than no systemic effect. Like if you are having urinary infection, you will not have problem in urine, but just a generalized weakness can be a presentation of some hidden infection. So you can consult your doctor if you are not relieved. Okay. Ma'am, डाइट के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइनीज फूड? क्या चाइनीज फूड खाना अलाउड है प्रेगनेंसी में? My personal experience is yes, you can have your cravings satisfied sometimes, but just make sure of infections, because Chinese food अगर आप घर पे बनाओगे तो I think that will be healthier. You can have Chinese food
You can see recipes from YouTube or some your sources, but please homemade बना के खाइए क्योंकि outside food में there is a chance of infection, and infections in pregnancy I think you should avoid. But ma'am, what about Ajinomoto? Ajinomoto I have seen because many patients earlier also asked me about Ajinomoto. But yes, frequently, like once in a month or like in pregnancy twice or thrice you can have. बहुत regular eating is to be avoided, but हाँ yes, occasional there is no problem. Okay. All right, मैम. एक मदर का क्वेश्चन है, ऑल्दो मैंने ये अपने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया था, बट आई थिंक आप भी बता दीजिए तो उनको तसल्ली हो जाएगी. मैम, इज मैदा हेल्दी और नॉट? It is better to have सूजी and wheat, गेहूं. आपको अगर मैदे का कोई भी चीज खानी है तो यू कैन मिक्स इट विद गेहूं का आटा, सो दैट थोड़ा सा आपको कम जाए बॉडी में, बिकॉज मैदे से आपको एक तो प्रोटीन भी हो सकती है, इट इज अ वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हो जाएगा आपके लिए. सो बेटर टू मिक्स एनीथिंग विद मैदा, जो भी खाना चाहते हो गेहूं के साथ मिक्स करके खा लीजिएगा, या सूजी इज एन अल्टरनेटिव, गुड अल्टरनेटिव. ओके. अच्छा, सो एक मैम, देयर इज अ वर्किंग मदर, शी इज सेइंग कि प्रेगनेंसी में इट इज एडवाइज्ड कि आई शुड हैव स्मॉल मील्स, स्प्लिट माय मील्स. So what options can you suggest for small snacks that are easy to carry to office? Okay, you can carry nuts. आप अखरोट, बादाम का छोटा-छोटा पैकेट बना के रख सकते हो पर्स में, so that थोड़ी-थोड़ी देर में you can have. दूसरा, आप मुरमुरा, मूढ़ी जिसे हम कहते हैं, छोटे डिब्बे में मूंगफली, मुरमुरा, इस तरह की चीजें भून के रख सकते हो, चना. तो ये सब चीजें अगर भून के आप एक डब्बे में ले जाओगे तो you can have intermittent. फिर आप स्प्राउट का सैलेड बना के ले जा सकते हो, जो कि आप बीच में खा सकते हो वर्क प्लेस पे. सो दीज आई थिंक आर द इंटरमिटेंट फूड्स यू कैन हैव एट वर्क प्लेस. एंड ऑल्सो मैम, आई थिंक फ्रूट्स वगैरह भी ले जा सकते हैं जो आप कट करके ना ले जाएं, बट लाइक ऐसे बनाना हो गया, या एप्पल है जो आप वहां पर काटो, या संतरा है जो आप वहीं खोल कर खा लो, या ग्रेप्स वगैरह है जो वॉश करके आप वहीं पर फ्रेश खा सकते हो. राइट. सो दूसरा क्वेश्चन है मैम के सेकेंड मंथ के बाद मुझे बहुत पेल्विक पेन हो रहा है, इज देयर अ प्रॉब्लम? See, pelvic pain can be because of any sign of warning sign of abortion, urine infection, or it's just a normal stretching pain of the uterus that you are feeling as बहुत ज़्यादा pain. तो अब differentiation is not possible on your end at home. So please consult your doctor. आपका जो चेकअप का टाइम है उसको फिक्स कर लीजिए. Get one checkup done. If everything is normal, that is the normal physiology. क्योंकि uterus will be stretching every day. Every day your baby is growing. Every day uterine muscles are stretching. So pelvic heaviness, pain in abdomen, lower abdomen, they are actually common in pregnancies. And हमारी लैंग्वेज में हम उसे ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, जो आपके लिए मैं समझा सकती हूँ कि वो इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो आपको पूरे 9 मंथ्स में कभी-कभी महसूस होते हैं. लेकिन जब आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हो, थोड़ा सा चेंज ऑफ वर्क प्लेस कर लेते हो, जैसे आप कहीं किचन में काम कर रहे हो, आप सोफे पे चले गए, थोड़ा बैठ के कुछ कर लिया, तो दे गो ऑफ. लेकिन अगर हाँ परसिस्टेंट पेन है, यू शुड कंसल्ट. राइट. दूसरा क्वेश्चन है मैम, हाउ टू अवॉइड गैस एंड एसिडिटी प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Okay, so for the best thing is you should have small meals. If you think कि तुम्हारा डाइट जो है वो 2 चपातीज के लिए है, तो आप उसको स्प्लिट कीजिए. आप एट अ टाइम 1 to 1.5 चपाती खाइए, एंड आधी चपाती की जगह छोड़ के रखिए, थोड़ी देर बाद भले ही खा लीजिए 2 घंटे बाद. तो स्मॉल मील्स लेने से जो रिगर्जिटेशन प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी. सेकेंडली, अगर आपको उसके बावजूद हो रही है एसिडिटी, तो यू कैन हैव कोल्ड मिल्क. जिस तरह से हम ब्रेकफास्ट में या लंच में, मॉर्निंग में या इवनिंग में मिल्क एडवाइस करते हैं, तो यू कैन हैव कोल्ड मिल्क इंटरमिटेंट. एक छोटा कप ऑफ कोल्ड मिल्क भी ले लोगे या आप दही ले लोगे तो आपको अच्छा लगेगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेडेक इज नॉर्मल और नॉट? हेडेक इन प्रेगनेंसी के रीजन होते हैं, या तो प्रेगनेंसी में
most of the time there is a dilutional hypotension because आपका blood volume increase हो जाता है और because of increased blood volume कभी-कभी hypotension blood pressure low हो जाता है and brain को enough blood supply नहीं मिल पाता. अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो बच्चे को ज्यादा ब्लड जाने के लिए ये हमारा सिलेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि टू सप्लाई मोर ब्लड टू द यूट्रस समटाइम्स हमारे ब्रेन में उतना अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं होता, तब हमें हेडेक हो सकता है. या बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, नोशिया, वॉमिटिंग, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, कार्बोहाइड्रेट्स इनफ नहीं होते और हाइपोग्लाइसीमिया से भी हमें हेडेक होता है. सो दीज हेडेक्स आर नॉर्मल इन प्रेगनेंसी. इन हेडेक्स के लिए हम अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें सो दैट जो लो ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी. हाँ, जिस तरह से आपको मैडम ने भी बताया कि यू शुड हैव प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट इंटेक इन योर प्रेगनेंसी. 6 पोर्शंस उन्होंने बताया एटलीस्ट मिनिमम. सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक ठीक रखोगे देन ऑल्सो जो नॉर्मल हेडेक ऑफ प्रेगनेंसी है वो नहीं होगा. अगर आप नहीं खा पा रहे हो, बिकॉज मेनी ऑफ पेशेंट्स से कि हम रोटी खा ही नहीं सकते मैडम, हमारी रोटी खाते ही निगल जाती है, तो यू कैन हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ आप ठीक है, अगर बिस्किट्स नहीं तो एटलीस्ट यू कैन हैव सम चॉकलेट, यू कैन हैव चीनी, नींबू पानी ले लो तो उसमें पानी और चीनी दोनों चला जाएगा अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हो. This is not an extra thing, this is replacement if you are not able to eat your meal. So normal headache will be relieved by this, and in spite of that अगर आपको headache रहता है तो it can be because of increased blood pressure or it can be because of migraine. So you need to consult him. Okay. What is the ideal weight gain in the entire pregnancy? The weight gain in pregnancy is dependent on your pre-pregnancy weight. If pre-pregnancy weight is ideal for your height, मतलब हम जिसे कहते हैं कि अगर आपकी हाइट और वेट जो है वो उसके हिसाब से जो BMI की वैल्यू निकलती है वो अगर आपकी नॉर्मल रेंज में है तो yes 10 to 11 kg is advisable. कि हाँ अगर आप 10 to 11 kg गेन करते हो तो that is a normal weight. But if you are already overweight तो I think 7 to 8 kg is enough for you. And if you are underweight then you can go up to 50 to 16 kg. And if you're carrying twins, ma'am? It doesn't matter. Twins है तो twins में बेबी का वेट, लाइकर, यूट्रस और ये सब मिला के आपको 4 kg to 5 kg का एक्स्ट्रा मार्जिन होता है. Right. Okay. मैम अभी आपका एक नेक्स्ट वाला फेवरेट क्वेश्चन आ गया. What is the right position to sleep in during pregnancy? Okay. See, position actually matters in last 3 months. Why? Because जब हमारा यूट्रस इतना हेवियर हो जाता है कि हेवी इनफ टू कॉज कंप्रेशन ऑफ आवर एब्डोमिनल वेसल्स. सी हमारे जो एब्डोमिन में ब्लड वेसल्स है दे आर मेजर ब्लड वेसल्स जो हार्ट से हमारे बाकी ऑर्गन्स तक जाती है थ्रू एब्डोमिन. एंड व्हेन आवर बेबी ग्रोज इनफ आफ्टर 6 months, जब हमारा बेबी मोर देन 5 to 700 ग्राम्स हो जाता है तो इट कैन कॉज प्रेशर एंड इट कैन जस्ट reduce the blood flow returning from the legs and also the blood supply to the organs, and that's why we advise patients to go for left lateral positions. But in early pregnancy there is no advice कि आप सिर्फ left lateral ही सो, आप आराम से अपने comfortable position में early pregnancy में सो सकते. और मैम क्या बैक पे सोना बिल्कुल मना है? No, not at all. आप तो सो सकते हैं. हाँ, तो मतलब अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर में हो और आपने अगर नींद में करवट बदल के बैक पे थोड़ी देर के लिए सो गए और आप कंफर्टेबल हो तो उठ करके चिंता करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Just meant. So I think ma'am will cover up this point, but basically बात यहाँ पर सिर्फ यही है बोलने की कि अगर आप बाय चांस अपने बैक पे नींद खुली और इतना स्ट्रेस मत लीजिए. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है क्या ब्रेस्ट का पूरा ब्लैक पड़ जाना नॉर्मल है? सो प्रेगनेंसी के दौरान पिगमेंटेशन काफी नॉर्मल है एंड ये पिगमेंटेशन होती है. किसी किसी के चेहरे पे काले दाग या गले पे दाग या हाथों पे या अंडर आर्म्स वगैरह में ब्लैकनेस होता है. तो आपको इन चीजों से स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना चाहिए. ये हाइपर पिगमेंटेशन इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी.
हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हीमोग्लोबिन अगर आप समझते हैं मैं तो ये है एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ हीम एंड ग्लोब्यूलिन, माने कि आयरन एंड प्रोटीन। तो आप आयरन रिच फूड्स तो जरूर लीजिए, जैसे कि आपकी पालक है, मेथी है, या दूसरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, थोड़े रेजन्स, डेट्स, फिग्स वगैरह आप ले सकते हैं। पर इसके अलावा आपको अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो भी इंक्रीज करना चाहिए। दालें, लेग्यूम्स, अगर आप एग्स वगैरह लेते हो तो इनको आपको इंक्रीज कर लेना चाहिए। बेबी क्या दिन में कितने बार मूव होना चाहिए? हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 मूवमेंट्स इन अ डे, या जो आपके बेबी के एक्टिव पीरियड्स हैं उसमें 10 मूवमेंट्स हो जाते हैं तो वी आर ओके विद इट। जनरली फर्स्ट टाइम मदर्स को 18 to 24 वीक्स के बीच में मूवमेंट्स फील होते हैं, एंड ये जो इनिशियल मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल लाइट होते हैं, जैसे कि बबल्स या फ्लटर्स। और इस टाइम पे हम मूवमेंट्स नहीं काउंट करते क्योंकि बेबी बहुत ही छोटा है। बेबी के जब थर्ड ट्राइमेस्टर में आप आ जाते हो 26-28 वीक्स के बाद, आप ये मूवमेंट्स काउंट करना शुरू कर सकते हो। I have low BP problem. How to be normal? Is it harmful for baby? Well, high BP से तो low BP better, right? High BP का तो harm effect ज्यादा है। Low BP से आपको कभी-कभी ऐसे blackout feeling या चक्कर का feeling वगैरह आने के chances है। तो इसीलिए आपको अपने BP को maintain करने के लिए, जैसे आप अपने साथ नमक और शक्कर का पानी रखें, तो यू कैन ड्रिंक दैट विल हेल्प। कोई भी मीठी चीज अगर आप थोड़ा सा खा ले या नमक की चीज आप खा ले तो आपका जो बीपी लेवल्स है वो उस समय के लिए मेंटेन हो जाएगा। बट एटलीस्ट इट इज नॉट स्ट्रेसफुल। जो माइल्डली लो बीपी होता है, इट इज नॉट समथिंग टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट। ओके, हाय मैम, वेलकम बैक। Network communication has been re-established. Yes. Hello. You can hear us, ma'am? Yes. I'm sorry. There was some connection error. No problem. Hota hai. It happens. I had issues with the network before we started. Fortunately, it got settled during the session. Okay. Ma'am, next question. किसी को baby movements नहीं feel होते तो कोई problem तो नहीं है 6th month में? Okay. See, the answer to this is कि if you are not feeling right from the starting, like generally patients start feeling movement फिर 5 months, 5 to 5.5 months onwards. अगर आप शुरू से नहीं फील कर रहे हो और आपको 6-7 month में भी कम या नहीं फील हो रहे हैं, then it's not a problem. But अगर आपको फील हो रहे हैं regularly, you're feeling and somehow you start कि reduce हो गए या नहीं हो रहे, then there is definitely a problem. Then you should consider. Okay. Alright. So I think ma'am questions का जो list है वो तो काफी हद तक पूरा हो चुका है. I think Ambika would like to take over and talk a little bit about stem cell banking to the audience. Okay. Everybody, I would request कि आप please wait कर लीजिए few minutes के लिए ताकि आपके सारे stem cell banking वाले questions भी answer हो जाए. Over to you, Ambika. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this lovely session which you both have taken, and I'm sure patients को काफी कुछ जानने को मिला होगा, जो कि usually मतलब normally तो डॉक्टर को दिखाते हैं, सब करते हैं, लेकिन still एक सभी साथ में बैठे हैं और सबके जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रद्धा, आपके लिए मतलब आपने भी बहुत टाइम निकाला, आपके इमरजेंसी केसेस आते हैं इन बिटवीन, still you have managed to come here and give us all the knowledge. And Sonali ma'am के लिए भी thank you so much. So right now I'm just sharing again I'm repeating about stem cells because जिन लोगों ने बाद में join किया और पहले मैंने इंग्लिश में बोला था, मैं थोड़ा हिंदी में भी शेयर कर देती हूँ. So is my screen visible? Yes. Okay, so first of all, this session was organized by CordLife. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, CordLife, we are India's premium stem cell banking network and we are Asia's largest and oldest network of stem cell bank. तो basically हम लोग stem cell preservation करते हैं. Stem cells
नॉर्मली क्या होते हैं, स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के मास्टर सेल्स होते हैं जिनमें के डिवाइड और डिफरेंशिएट करने की पोटेंशियल होती है. सो स्टेम सेल्स स्पेशलाइज करते हैं एंड स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर्म करते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं. तो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना मतलब कि आप एक संजीवनी प्रिजर्व कर रहे हैं, आप अपने बेबी के लिए एक लाइफ सेविंग ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं. सो हम 3 टाइप के स्टेम सेल्स प्रिजर्व करते हैं. 3 टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स एंड एपिथेलियल स्टेम सेल्स. तो 3 टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं थ्रू कॉर्ड ब्लड एंड कॉर्ड टिश्यू बोथ. सो कॉर्ड ब्लड से हमें आरबीसी, डब्ल्यूपीसी एंड प्लेटलेट्स मिलते हैं. कॉर्ड टिश्यू से लिवर टिश्यू, बोन टिश्यू, कार्टिलेज, हार्ट टिश्यू, मसल, नर्व टिश्यू, फैट टिश्यूज बनते हैं. एंड this one is unique that epithelial stem cells also हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं. So this is our USP. जो हमारे मतलब स्टेम सेल्स की जो ट्रीटमेंट है वो 80 से ज्यादा बीमारियों में पॉसिबल है. स्टेम सेल्स के थ्रू जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है. सो आज की डेट में 80+ डिसीजेस हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और पॉसिबल हुआ है फॉर मेनी पीपल. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है जिनका सक्सेसफुली स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है और उनको एक नई लाइफ मिली है. लाइक देयर इज वन बॉय रियान जिनका ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट हुआ है, जो कि अपनी बेबी सिस्टर के स्टेम सेल से सेव हुए हैं. सो जो स्टेम सेल्स हैं वो बेबी के खुद के और उसकी इमीडिएट फैमिली के भी काम आता है. सो दैट्स व्हाई इनको अपनी बेबी सिस्टर का स्टेम सेल्स काम आया. अनदर एग्जाम्पल इज जॉर्जिया जिनको सेरेब्रल पाल्सी था और उन्हें भी कॉर्ड ब्लड के थ्रू ही सेव किया गया है. अनदर वन इज जस्टिन जिनको न्यूरोब्लास्टोमा जैसे डिसीज में भी कॉर्ड ब्लड के थ्रू हेल्प मिली है. एंड देयर इज वन इंडियन एग्जाम्पल ऑल्सो, मोइनम पाल, जिनका कि सिबलिंग के कॉर्ड ब्लड से थैलेसीमिया मेजर जैसी डिजीज जिसमें खून बनना बंद हो जाता है, ऐसी डिजीज का भी ट्रीटमेंट हुआ है. सो you can all imagine कि stem cells कितने useful हैं आज की डेट में. This is our lab, CordLife की, just as I said, this is Asia's largest stem cell network and ये precious होते हैं stem cells. इस वजह से the fully equipped lab and latest automated technology wise and everything is very necessary. So and हम अपना आपको एक यूएसपी बताएं तो वी आर इंटरनेशनली अक्लेम्ड. वी हैव ऑल द सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टेम सेल बैंकिंग. वी आर लिस्टेड इन 2 internationally stock exchange, which is Singapore Stock Exchange and Bursa Malaysia. And as I said, it is the oldest and largest network. So over 5 lakh trusted people we have network across all over Asia Pacific. फॉर स्टेम सेल हार्वेस्टिंग एक टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. और टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि जब आप स्टेम सेल हार्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम नंबर और बेस्ट क्वालिटी में स्टेम सेल्स मिले. सो CordLife यूजेस मोस्ट ऑटोमेटेड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी टिल डेट. जो आज की डेट में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी AXP2, जो कि मैक्सिमम स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं विद अटमोस्ट सेफ्टी बिकॉज इट्स अ क्लोज टेक्नोलॉजी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. So as I said that we preserve not only cord blood but also cord tissue. So through cord tissue हमें mesenchymal and epithelial stem cells भी मिलते हैं जो कि organ and skin related diseases cover करते हैं. तो ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं cord tissue को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, that is Cell Optima, which is patented technology of CordLife. So we are with you and always. हम लोग आपको एक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, as I said स्टार्टिंग में भी. सो अगर आप चांस देंगे सो विल गिव यू जस्ट 20-30 मिनट्स का एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन हम प्रोवाइड करेंगे आपको. इट्स अ फ्री डेमो एंड यू कैन टेक, आप घर पे ले सकते हैं इधर और यू कैन टेक ऑनलाइन गूगल मीट पे या फिर आप जूम पे ले सकते हैं. सो प्लीज गिव अस अ चांस टू गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. Thank you so much. Thank you mothers for attending. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling?
infants are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.